तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके से क्रिश्चियन एमिनेंट ने रोल प्ले किया है आपके फाउंडेशंस को बिल्ड करने के लिए? It has been a major role. Means my personal life, my professional life, everything is connected with Christian Eminence. सो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन आपकी फन जर्नी, आपकी आपकी कैंटीन, आपकी बुक्स, आपकी जो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें होती हैं वो थोड़ा बताइए। Lot of fun it was. It is a मतलब I'm still getting goosebumps. Experiencing मतलब when I came here, I visited the college. All old memories flashed back. एजुकेशन के बारे में मुझे बताइए कि आपका एजुकेशन कैसा रहा यहाँ पर, कितना आपने सीखा, क्या आपने आगे अपने जैसे आप यहाँ पे पढ़ा भी चुके हैं तो क्या क्या चीजें थी जो आपको एक्चुअली यहाँ पे फुलफिल करती गई? As I told you before, अभी मैंने बताया आपको कि faculties were very strict. यस है ना कि असाइनमेंट नहीं बना था. वी वर किड्स, हम वहाँ थे, लेकिन टीचर्स केम देयर आल्सो टू. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉलेज डायरी पॉडकास्ट, जहां हम लेकर आए हैं इंस्पायरिंग कहानियां और फन कॉन्वर्सेशन क्रिश्चियन एमिनेंट के अलुमनाई के साथ। आज मेरे साथ हैं प्रगति शर्मा, जिससे आप सभी इंस्पायर होंगे। इन्होंने अपनी जर्नी कॉलेज के साथ ही स्टार्ट करके यहीं से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और एक इम्पैक्टफुल सोशल इनिशिएटिव भी शुरू किया है। हेलो प्रगति, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच. थैंक यू रंजिता. ऑलराइट, तो अभी हम कॉलेज के बारे में ऑफ कोर्स आपसे जानेंगे, बट मुझे आप बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? Actually, I did my UG PG both from this college, and while being in college, I was very attached to my teachers and academics, and I wanted to do something related to education only. Alright. So I just this started up after completion of my college. I wasn't teaching for some time because I just wanted to connect it to education field only. Then I started 15 years back. I started with this initiative of this institute where we educate the students, skill the students, and कुछ skill development programs भी उसमें हम कराते हैं, plus higher education के online working professionals के लिए programs कराते हैं. So we get the students skilled, get them placed so that they can get a good career in future. ऑलराइट, ऑलराइट। तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके से क्रिश्चियन एमिनेंट ने रोल प्ले किया है आपके फाउंडेशंस को बिल्ड करने के लिए? It has been a major role. Means my personal life, my professional life, everything is connected with Christian Eminent. After completion of my 12th, I came with my sister to this college. I have a twin sister. Oh, So we both took admission in this college. Fortunately, we came here, took admission in BCA program. That was first batch of BCA in Christian Eminent in 1997. Then we completed our graduation here. Uh, uh, College was so comfortable, teachers were so nice. So I decided to continue my PG also from here. okay. So I completed my MCM from Christian Eminent College. And then when it came to career, as I told you, I was interested in academics and education. I wanted to give something to the students, to teach them, to skill them. So I started teaching here. As I told you, professionally and personally, both I'm connected with the college because my first job was here. Okay. So my professional career started from here only. Plus, my better half, my husband, I also met him also in this college only. Oh, so you have a love marriage. Yeah. He was my classmate in graduation, Okay. and in PG also we did together in this college only. Then we parted ways for the career. He is in corporate now, but got married after 3 years of completion of PG. That is so nice. That is so nice. So apart from education, आपकी फन जर्नी, आपकी आपकी कैंटीन, आपकी बुक्स, आपकी जो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें होती हैं वो थोड़ा बताइए। Lot of fun it was. It is a मतलब I'm still getting goosebumps. Experiencing मतलब when I came here, I visited the college. All old memories flashed back. I was sitting that side of the table as a student, this side taking classes. All that memories came to my mind. We used to bunk a lot of classes. And our batch was famous because it was a group bunk. Oh, So no one used to be in the classes. And we used to be in canteen. Canteen वाले भैया तो अभी भी पुराने मेरे friends आते हैं तो they are more excited to meet canteen वाले भैया. uh, we had a lot of baked samosa there. It was very tasty that time.
So abhi to I'll go there, check whether he's available or not. And I just remember one incident. It was our assignment submission date, and our teachers were very strict. कि last day of submission and our batch has not submitted the assignments. तो सर की क्लास थी, सो वी वर सपोज टू बी इन द क्लास कि असाइनमेंट किसी का भी नहीं बना था, लास्ट डेट था सबमिशन का। तो अब क्लास में कैसे जाएं, सर का Right. असाइनमेंट सबमिट करना है, सर की क्लास है। तो वी वर ऑल चिलिंग इन द कैंटीन, हैविंग कोल्ड ड्रिंक्स, हैविंग समोसा एंड प्लेइंग गेम्स एंड एवरीथिंग। और सर कैंटीन में आ गए। Oh. तो असाइनमेंट की लास्ट डेट एंड ऑल के सब बंक करके कैंटीन में बैठे। मतलब ही स्टार्टेड रनिंग कि अब कहाँ जाए, भागे कैसे, हाउ टू फेस हिम। सेड सॉरी सर, दिस विल नेवर हैपन अगेन। एंड सर ने भी बोला ठीक है। फिर अगेन डेडलाइन ऑफ वन डे, उस दिन पूरा दिन भर रात भर सुबह तक असाइनमेंट बनाया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी ऑल सबमिटेड असाइनमेंट्स एंड that was really a very beautiful memory we had that time. राइट। आपके अपने बैकड्रॉप मेमोरीज तो हमें बताई थी। एजुकेशन के बारे में मुझे बताइए कि आपका एजुकेशन कैसा रहा यहाँ पर? कितना आपने सीखा? क्या आपने आगे अपनी, जैसे आप यहाँ पे पढ़ा भी चुके हैं, तो क्या-क्या चीज़ें थी जो आपको एक्चुअली यहाँ पे फुलफिल करती गई? एज आई टोल्ड यू बिफोर, अभी मैंने बताया आपको कि फैकल्टीज वर वेरी स्ट्रिक्ट, यस। है ना, कि असाइनमेंट नहीं बना था, वी वर किड्स, हम वहां थे, लेकिन टीचर्स केम देयर आल्सो टू, उनको फाइंड बता यू दिया होगा आउट, किसी ने यस। बच्चे वहां बैठे। सो टीचर्स वर स्ट्रिक्ट related to assignments and studies are very good in this college. As I told you, my initial experience was in teaching. तो जो मैंने यहाँ से पढ़ा, जो टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, दैट ओनली आई डिलीवर्ड टू माय स्टूडेंट्स आफ्टरवर्ड्स। सो स्टिल आई स्टडी, जब एमसीए में थी वी हैड आचार मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब मैंने पढ़ा। सो स्टिल अभी मैं जब मेरे बिजनेस में जब ये सब चीजें मुझे काम आती हैं, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि ये सब मुझे अभी तक याद है जो ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ा था। सीखा था। Both UG and PG, I had some finance subject. I'm a math student. I'm not from a ओके, commerce background. ओके, ओके। लेकिन तब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होता था, एक कॉमर्स का सब्जेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना पड़ता था। हाँ, अभी मुझे बिजनेस में तो अकाउंटिंग बहुत ज्यादा काम आता है, बिकॉज सेल्स एंड अकाउंटिंग पे बहुत कुछ बेस्ड है मेरा काम। बट स्टिल उस समय जो मुझे टीचर्स ने पढ़ाया था, आई स्टिल रिमेम्बर कि व्हाट दिस रेशियो एनालिसिस एंड बैलेंस शीट एंड एवरीथिंग, आई स्टिल रिमेम्बर। और जो यहाँ पे पढ़ाया गया, स्टिल इट, मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने पढ़ी या जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े, दे आर स्टिल इन माय मेमोरी एंड आई स्टिल उसी के बिहाफ पे, आई शुड नॉट से, बट स्टूडेंट्स लाइक्स मी एज ए टीचर, बिकॉज जो मैंने अच्छे से पढ़ा वो मैंने अच्छे से पढ़ाया। दैट इज है ट्रू, ना? दैट अगर इज मुझे अच्छे से मैं नहीं पढ़ पाती तो शायद मैं उनको अच्छे से नहीं मतलब एजुकेशन का फाउंडेशन आपका बहुत अच्छा रहा है जब आपने कृष्ण एमएनएम से पढ़ाई की। डेफिनेटली डेफिनेटली। दैट इज सो नाइस, दैट इज सो नाइस। तो उस टाइम पे आपके टीचर्स कौन-कौन थे और क्या-क्या सीखा आपने? एंड कोई ऐसा किस्सा जहाँ पे एक्चुअली टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने आपको लाइक कि इस टीचर से बच के ही रहना है? टीचर्स तो शाह सर यूज्ड टू टीच अस, जायसवाल सर, चौहान सर वाज विद अस, ओह! बट then पाटीदार सर used to teach us. Lot of teachers were there. मैथ्स के टीचर थे एक बैनर्जी सर। हुँ, आई वाज अ मैथ्स स्टूडेंट, आई लव्ड मैथ्स, मुझे वो भी सर बहुत पसंद थे। शाह सर ने जो हमें उस समय पढ़ाया, इट वाज सो इम्पैक्टफुल कि आई स्टिल रिमेंबर ऑल द बोर्ड्स व्हिच ही मेड दैट at the time ओह! of education. They're still in my memories, because that is very important part, how you make the board in teaching, because दैट ये इज एक ट्रू। मेमोरी हमारे दिमाग में दिमाग में रह रह जाती जाती है। है। क्योंकि उस समय तो ऐसा यूट्यूब और ये सब चीजें थी नहीं, अभी हम कुछ भी यूट्यूब पे सर्च कर लेते, उस समय जो टीचर ने पढ़ाया, हमने जो नोट किया, वही बहुत इम्पोर्टेंट होता था। सही बात है, तो सही बात है। सो मेनी टीचर्स और एन नंबर ऑफ टीचर्स वर देयर, दोज वर वेरी, जिन्होंने बहुत अच्छा हमें पढ़ाया। एक चीज मैं बताना चाहूंगी नम्रता यार, कि जो हमको बोलना चाहिए, जो प्रैक्टिकल नॉलेज साथ में मिला, हुँ। वो बहुत अच्छा था। कि आई वाज आईटी स्टूडेंट, तो सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ने से तो नहीं होता, नहीं नहीं हो होता। पाता। तो जो हमें प्रैक्टिकल में पढ़ाया जाता था, हमारी जो क्वेरीज सॉल्व की जाती थी, कि तुरंत जो भी एरर्स आती थी, उनको तुरंत हमको प्रैक्टिकल लैब्स में उनका सोल्यूशन मिल जाता था, मिल हाँ, जाता था। तो दैट वाज वेरी अप्रिशिएबल, and I still remember those days studying here and gaining knowledge and delivering that knowledge to my students afterwards.
It was a great experience. दैट इज ट्रू। तो आप मुझे बताइए कि आपने कृष्ण एमिनेंट ही क्यों चूज किया था? देखिए, इसका आंसर आई वाज न्यू टू इंदौर, है ना? सो वी केम हियर इन सर्च ऑफ कॉलेज ओके। with my father. Me and my sister came. We came to Indore because my brother was already studying in Indore. अच्छा। My elder brother was already studying in Indore. So obviously my parents चाहते थे कि भैया है तो we should also be in the same city. दैट इज ट्रू। Then we started searching for college. So good feedback, very good feedback came for this college. Oh. Very good feedback. Secondly, we both were girls, so 12th pass students at that time, father didn't want any unsafe place. Right. So here hostel facility was very good, very safe, very homely. Oh. So teaching plus this hostel facility, the location, it was not very far away from the city. It is center of the city. Yes. So these were very points we selected for this college. We had a very good feedback कि कॉलेज में पढ़ाई अच्छी है, हॉस्टल्स हमारे लिए बहुत Safe अच्छे हैं, थे, safe सारी थे, चीजें। सेंटर ऑफ द सिटी है, कहीं बहुत बाहर नहीं है, तो these are That is very true. plus. ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत मैटर करते हैं Yes, जब भी yes. हम चॉइस बाहर करते से हैं, निकलते राइट? हैं, हाँ. And I'm talking long back, more than 25 years back. उस समय जब हम बाहर आते हैं तो ऑलरेडी पेरेंट्स काफी डिसीजन मेकिंग रहता है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स वी डिस्कस विद माय ब्रदर, एंड ब्रदर वाज ऑलरेडी स्टडीइंग है, तो ही had already a very positive feedback for this college. He took a feedback, he got a very good feedback for the college, then we decided to take admission. दैट इज नाइस, दैट इज नाइस। तो आप मुझे बताइए कि उस टाइम पे आपके फ्रेंड्स भी बने होंगे, वो Yes. आज भी टच में हैं आपसे? Sorry, definitely. One is my husband. Yes, that is true. One is my sister. पूरा घर है, settled है यहाँ पर। So we all are in touch. We keep meeting. Not only my classmates, our juniors also. They keep visiting us. मतलब every year they have a plan. They come to for a week. They come to our home. Stay some from Noida, from Lucknow, from Mumbai. They came. So they got placed from the college itself? Yes. And about my batch, I would like to say, my classmates are in US, in Australia, and in Europe. Then Bombay तो बहुत सारे हैं. Pune we have lot of friends placed there. London, one of my very good junior, she was my junior. She's placed there. Wow. So मेरे ख्याल से हमारी जो क्लास की बैच थी उस समय 50 to 60% आर अब्रॉड. वाओ, वाओ। मतलब ये यूजुअली लोगों का ड्रीम होता है कि जब आप कॉलेज चूज करें, हाँ. तो आजकल ऐसा हो गया कि कॉलेज सिर्फ ठीक है जाना है तो जाना है, बट एक पॉइंट होता है जहाँ पे एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉलेज ये सोच के जाते हैं कि यहाँ से एक बेस्ट प्लेसमेंट करके ही निकलते हैं। हाँ, right. और यूजुअली क्या होता है ना, जब हम ऐसी बात करते हैं तो IIT IIM वही Yeah, चॉइस एंड ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है. एग्जैक्टली। What I tell you about this कि no matter हम यहाँ ना what is important is your base. अगर आपका एक बेस अच्छा हो जाता है तो you can touch the sky. That is There is true. no limit. So बेस यहाँ पे एक हमें स्ट्रॉन्ग मिला, हमको हमारे जूनियर बैचेस को. मतलब अब क्या है ना, इंदौर में बहुत कम बचे, नहीं तो they would love to be part of this. हाँ, yes, Definitely, yes, yes. definitely. We'll find it out then. अगर उनका कभी भी कुछ होता है हाँ, that right. India into the city, we'll definitely call them for Yes, this. yes, definitely. I'm in contact with almost all the students, my junior batch, unka junior, because 5 years I was in this college. Right. My graduation and my PG both. post graduation. So a lot of connections I made here, and they are still with me. And we keep meeting. मेरी लंदन वाली फ्रेंड भी जब इंदौर आती है, बिकॉज शी इज फ्रॉम इंदौर, Right. मदर इंदौर में ही है, Okay. बट वो जब भी इंदौर आती है वी मीट एंड गुड फन, छप्पन जाते हैं, कॉलेज कैंटीन आते हैं, सर लोगों से मिलने आते हैं. So definitely मतलब आप of course आने वाले लोगों को भी और जितने भी students हैं, you'll definitely recommend this college to them, right? Definitely, as I told you na, this college provided me a very strong base. After 12th I joined this college. After 12th student don't have any उतना vision नहीं होता है हमारा, उतना Clarity नहीं होती है, क्या clarity नहीं, करना है। clarity is the correct word, clarity नहीं होता है हमें क्या करना है. तो when you come to this college and जब आप यहाँ से गाइडेंस लेते हैं, बिकॉज नॉट जस्ट टीचिंग, करियर गाइडेंस भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाता है. Right, right. सो आपको जब यहाँ से सब्जेक्ट नॉलेज, करियर गाइडेंस दोनों चीज़ें मिलती है ना, तो इट गिव्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो.
That is Grow true. That's as a person, growth in your career, everything you get it. दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। मतलब यू मेंट टू से कि आपके टीचर्स भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, आपके काउंसलर्स भी रोल प्ले Yes. करते हैं, आपके फाउंडेशन सेट हो जाने चाहिए Right, क्लियरली। right. सो आप आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि आप जब कॉलेज चूज करो तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखो एंड व्हाई टू गो फॉर क्रिश्चियन एमिनेंस? आई वुड लाइक टू से कि जब भी कॉलेज सेलेक्ट करो, एनी कॉलेज यू गो फॉर, एनी सिटी यू गो फॉर, जस्ट चेक कि फर्स्टली एकेडमिक्स अच्छे, जस्ट Right. डोंट गो फॉर द नेम ओनली। कि कई स्टूडेंट्स ना व्हाट दे लैक इज friend took admission, so they also took admission. Right. Don't go for that. Just take a feedback of the academics first. Na? After academics, the environment, how the environment is. Will it help you grow? ना? Right. एक academics अच्छा होना चाहिए. Then thirdly, placements is very important, है ना? क्योंकि अगर वैसे आपका फाउंडेशन अच्छा है तो आपको प्लेसमेंट्स तो मिल ही जाएंगे। जाता है। तो दिस कॉलेज हैज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट्स कनेक्ट। Right. तो आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाएगा। तो जस्ट लुक फॉर गुड academics, look for the good placements and a good environment in the college. That is true. This would be really helpful for our students to choose the college. Yes. It's really helpful. अच्छा मुझे बताइए कि आपने जैसे इस कॉलेज में इतना टाइम बिताया है, सारी चीज़ें आपने की, कहाँ से इस कॉलेज को कहाँ से कहाँ तक आते देखा है? कॉलेज की जर्नी कैसी देखी है आपने? कॉलेज की जर्नी की बात करें, आई जॉइन दिस कॉलेज इन 1997. Right. College started in 96. 96 बस एक साल पहले you started college. I started the college. I joined the college. BCA का first batch था. मतलब 96 college started with BBA and BCom. Right. So there were only two batches running at that time. And that also, BCom was for girls, not for boys. BBA was co-ed. These Okay. were the two classes the college started with. Right. So then it grew. I joined, then there were only two, our senior batches, one of BBA and one of BCom. Right. Then we came to college, and from there, I have seen growing to PG courses, to good placement connects, to annual function we participated, to inter-college competition we won. I participated in inter-college Wow. dance competition on behalf of this college. College. Yes, I still have the photographs of those classes. So college provided us platform to connect with other colleges also. as well. In sports, colleges was very good at that time. So I have seen growing from two classes running Right. to going to inter-college competition level That is and true, that is everything, true. from UG to all PG courses. Right. Then- From one or two batch to so many batches Yes, so and many everything. batches, lot of students. And at that time when I joined in UG, there were few students, but when I joined PG, the college was full of students. We used to enjoy a lot because there were so many students. Annual function you used to have a blast. And अच्छा, we used to कॉलेज में हम टीचर्स डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे. मतलब वी यूज टू बहुत पूरा कल्चरल प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से टीचर्स डे सेलिब्रेट करते थे. एंड धीरे धीरे कॉलेज इतना ज़्यादा ग्रो हो गया. मतलब आई कुडंट इमेजिन कि उस समय जो कॉलेज था वो अभी ये वही कॉलेज है. एंड स्टिल अभी इतने सालों बाद में आई हूँ तो स्टिल आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस. व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज आई थॉट अरे इट्स स्टिल द कॉलेज, इट्स स्टिल द सेम. I called my husband, Sumit, I am here and college has changed a lot. बहुत ग्रो कर लिया है कॉलेज ने from that time to राइट. जैसे कि इसकी भी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रखी गई थी, इसीलिए कॉलेज इतने लेवल पे तक जा पाया है. yes. ऑलराइट. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपका इंट्रोडक्शन जब दिया था तो मैंने बिल्कुल बताया था कि आपका एक इम्पैक्टफुल सोशल इनिशिएटिव है. Yes. सो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए. Sure. Actually, I have started with related to academics only. It is for skill development of the students and for online education. So we have taught very underprivileged students skill development के लिए उनके free of cost काफ़ी हमने उनको courses provide किए हैं. और उनको like you can say retail sector and ऐसे जो छोटे छोटे sectors होते हैं उनमें उनको train करके so that they can get placements in any these type of sectors. Okay. तो प्लस ऑनलाइन एजुकेशन उन बच्चों के लिए जो इतना हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते, दे नीड टू गो फॉर जॉब्स आफ्टर Right. 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन. तो वो लोग अपने जॉब के साथ साथ अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं.
दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। ऑलराइट। तो जैसे कि आपके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑनलाइन की स्टडीज़ कैसी रहती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। Online studies, we just this is students are working professionals, so we provide them ID and password. They can log in and go for the Saturday Sunday live lectures Okay. and give their examinations online, and they can complete their So basically it's degrees. not time taking. It's not time taking, taking. yes. It's something which you can do with your आपके रोजमर्रा की लाइफ, with your work, with everything. You can make You it can happen. earn and you can learn. learn also. That is true. थैंक यू प्रगति सो मच। इट वॉज अ हार्ट वार्मिंग कॉन्वर्जेशन। आपने बहुत कुछ शेयर किया, इतनी वैल्यूबल इंसाइट्स दिए कॉलेज के बारे में, जो एक्चुअली स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेंगे उनके फ्यूचर को सेट करने के लिए। और आप लोगों को ये सेगमेंट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको कौन सा पार्ट इसमें सबसे अच्छा लगा है, इसके लिए आप हमको इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। थैंक यू, मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। Thank you. Bye.